everyone, welcome back to my YouTube channel The Friendship. In today's video, we'll start with chapter number 7 of Oshonte 4. Chapter number 7 है Je suis en retard, means I am late. ठीक है, तो इस चैप्टर को हमारा जो इंटेक्स्ट पार्ट है उसको हम कवर करेंगे, एज वेल एज जो ग्रामर पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे. तो ग्रामर पार्ट इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ध्यान से आप लोगों को हर एक चीज़ सुननी है एंड उनके पॉइंट्स आप नोट्स भी बना सकते हो साथ में. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय द इंटेक्स्ट पार्ट. सबसे पहले हमारे पास ब्रिगेट है. वो कहता है अलो सोफ़ी, मीन्स हेलो सोफ़ी. सो मीन्स दे आर ऑन फ़ोन कॉल, बिकॉज जो हमारा अलो होता है इट इज़ यूज्ड ऑन फ़ोन. ठीक है, फिर सोफ़ी कहती है वी, मीन्स येस. ब्रिगेट ça va, tu as une drôle de voix, means are you okay, you have a funny voice. Sophie, une journée horrible. Mon réveil n'a pas sonné, means I had a horrible day. My alarm clock did not ring. Je me suis réveillé tard, means I woke up late. Je me suis habillé à toute vitesse, means I dressed up myself with whole hurry or whole speed, full speed. Je ne me suis même pas douché, means I did not even had a bath. Enfin, je suis arrivé à l'école, means finally I arrived in the school. J'ai pleuré, j'ai tremblé, means I cried, I trembled. Trembled का हमारा मीनिंग क्या होता है? लाइक टू शेक विद, लाइक आपकी बॉडी शेक हो, या जब आपको कोल्ड होता है या फिर जब आप डरे होते हो तो उसको हम ट्रेम्बल बोलते हैं. Mes amis se sont inquiétés à cause de moi, means my friends worried because of me. Je n'ai pas pu étudier, je voulais rentrer chez moi, means I could not study, I wanted to return to home. Quand je suis retourné à la maison, je me suis couché pour 2 heures, means when I returned to the house, I slept, I was in my bed for 2 hours. Maintenant je vais mieux, means now I am fine. ठीक है, से फिर जो ब्रिगिट है वो कहता है tu te stresses trop, tu as besoin de vacances, means you stress yourself a lot, so you need vacations, you need break. Oui, je crois, means yes, I believe. Je planifie d'aller chez ma grand-mère qui habite à la campagne, means I am planning to go to my grandmother's house who lives in the countryside. Campagne means countryside. फिर आगे हमारे पास सीन दे रखा है व्हेन सोफ़ी इज़ इन हर ग्रैंड मदर्स हाउस. सोफ़ी शी इज़ अ grand-mère, means Sophie at her grandmother's house. Sophie vient chez sa grand-mère pour passer ses vacances, means Sophie comes to her grandmother's house for passing her vacations. Sa grand-mère est russe, means her grandmother is Russian. Sophie, bonjour mamie, je veux demander quelque chose, means hello grandma, I want to ask something. Bonjour ma chérie, bien sûr dis-moi, means hello. Hello my dear. Bien sûr means of course. Dis-moi means of course. Tell me. Tu es d'origine russe, means you are Russian origin, means आपकी nationality जो वो Russian है. Grandmother कहती है oui, je suis née en Russie, je suis venue en France pendant la Révolution, je suis arrivée à Paris sans argent, je n'avais rien sur moi, means yes, I was born in Russia, I came in France during the revolution. revolution के टाइम पर उसकी grandmother जो है फ्रांस आई थी. je suis arrivée means I arrived in Paris without money. je n'avais rien sur moi means I had nothing on me, means कुछ नहीं था उसके पास. ठीक है, et tu es tombé amoureuse de papi qui est français and you fell in love with the papi का हमारा मीनिंग होता है grandpa who is French. ठीक है, नेक्स्ट पेज पर दे रखा है exactement, j'ai rencontré ton père à Paris où nous nous sommes mariés, means exactly I met your grandpa. हमारा यहाँ पर सिंपली पैर दे रखा है बट उसका मीनिंग हमारा क्या है? ग्रैंडफादर. ठीक है, I met your grandfather in Paris where we married. Nous sommes restés très peu de temps à Paris, means we stayed in Paris for a very little time. Alors nous sommes descendus dans le Midi où ta mère est alors née, means then we descended, means हम आ गए थे in the dans le Midi, it is a place where your mother was born. ठीक है, et tu n'es jamais revenu en Russie and you have never stayed in Russia. रशिया में कभी नहीं रहे. jamais. Je suis devenue française en vrai, so means I never. I became
फ्रेंच इन रियल सेंस, क्योंकि वो शुरू से फ्रांस में थी तो कुछ सेंस से वो क्या बन गई थी, फ्रेंच बन गई थी। फिर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं इससे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इस्क सोफ़ी आयु नॉर्मल, मीन्स डज सोफ़ी हैज़ अ नॉर्मल वॉइस, नो। उसकी वॉइस कैसी हो गई थी, फनी वॉइस हो गई थी, ठीक है। इस्किल journée fantastique, means does she had a fantastic day, no. Quel est le pays d'origine de sa mère, means what is the origin country of her grandmother, it is Russia. Quand est-ce que la grand-mère est arrivée à Paris, means when did the grandmother arrived in Paris, so during the revolution she arrived in Paris. Où le couple est-il descendu en France, means where did the couple descended in France, तो à la Midi, they descended in the Midi. फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में यू हैव टू चूज वन वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पुट इट ओवर हेयर, ठीक है। कोई भी वर्ड नहीं लेना, एक बार सेंटेंस को रीड करना, फिर उससे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को वर्ड चूज़ करना है। फिर यहाँ पर हमारे पास दे रखा है यू हैव टू चूज़ द अपोजिट, ठीक है। यू हैव टू गिव द अपोजिट, जैसे कि आवेग का अपोजिट, आवेग मीन्स विद, इसका अपोजिट सोम विच मीन्स विदाउट, ठीक है। बोकुद का हमारा अपोजिट पद, ठीक है, विच मीन्स वेरी लिटल। बोकुद मीन्स वेरी मच, पद मीन्स वेरी लिटल। फिर जो हमारे ग्रामर टॉपिक है उस पर हम आ जाते हैं। वी हैव लर्नड द नेगेटिव एक्सप्रेशन लाइक न jamais means never, न प्लर मीन्स no more, न nulle part means nowhere, etc. प्रीवियस लेसन में हमने नेगेटिव एक्सप्रेशन देखे थे। अब हम इनका पासे कंपोजे में इनकी कैसे यूसेज हमारी होती है उसको हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखा है ऑफ फॉर्मिंग नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहला स्ट्रक्चर है अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस विद ऑक्सिलरी अवुआर। अवुआर वर्ब के साथ हमारे कैसे नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म होते हैं। हमें पता है कि जो नेगेटिव होता है वो न और पा के साथ फॉर्म होता है एंड बीच में हमारी क्या लग जाती है, वर्ब लग जाती है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि पासे कंपोजे में हमारी दो वर्ब्स होती हैं। एक तो होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब, जो कि होती है हमारी अवुआर एंड एत्र, ये हमारी दो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। एंड एक हमारी होती है जो पास्ट पार्टिसिपल मीन्स जो हमारी मेन वर्ब होती है। अब न किसके आगे लगेगा, पा किसके बाद लगेगा, ये आप लोगों को जानना है। तो फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट एज इट इज़, फिर हमारा लगता है न, फिर हमारी अवुआर लगती है, फिर पा लगता है, मीन्स अवुआर के आगे एंड अवुआर के पीछे हमारा पा लगता है, फिर हमारी पास्ट पार्टिसिपल आती है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ, अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये छोड़ो आप लोग, ये लावे लावगाच्योर मीन्स आई वॉश्ड द कार। अब मेरे को इसको जो है पासे कंपोज सॉरी नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले ए जो हमारी अवगार वर्ब है मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके आगे हमने न लगाया एंड एज यू ऑल नो दोनों के दोनों वोवल थे, यहाँ पर भी वोवल यहाँ पर भी वोवल, तो ये वोवल कट होकर अपोस्ट्रोफी लग गया, ठीक है। ज ने पा लावे लावो आथ्योर, तो ये हमारा बन गया ज ने पा लावे ला वो आथ्योर, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं, ट्यू नापा लावे लवु आथ्योर, एल नापा लावे लवु आथ्योर, नून वो पा लावे लवु आथ्योर, तो यहाँ पर अवगार वर्ब के आगे पीछे न और पा लग रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा अवगार वर्ब की बात। नेक्स्ट हमारी आती है एत्र वर्ब के साथ। एत्र वर्ब में भी सेम है, सब्जेक्ट होता है, फिर एत्र वर्ब के आगे न एंड एत्र वर्ब के बाद पा, फिर हमारी पास्ट पार्टिसिपल देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ, je suis allé à l'école मीन्स आई वेंट टू दी स्कूल। अब ये हमारा ब्रैकेट में ई क्यों लगा रखा है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पासे कंपोजे में बताया था कि एत्र वर्ब जब भी हमारे पासे कंपोजे में यूज़ होती है तो हमारा जो एडजेक्टिव्स होते हैं, जो हमारी जो हमारी वर्ब होती है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट फेमिनिन है तो नाउन भी फेमिनिन में हमें लगानी पड़ती है, अगर प्लूरल है तो प्लूरल में लगानी पड़ती है, अगर मैस्कुलिन प्लूरल तो मैस्कुलिन प्लूरल में, फेमिनिन प्लूरल है तो फेमिनिन प्लूरल में हमें लगानी पड़ती है। दिस इज ओनली इन द केस ऑफ एत्र। अवगार में ऐसा नहीं होता, वर्ब वही रहती है, उसका कुछ चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, बट एत्र के केस में होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ब्रैकेट में ई लगा रखा है, क्योंकि जो हमारा जो य है वो फेमिनिन भी हो सकता है, आई कैन बी फेमिनिन ऑल्सो, दैट्स वाई ब्रैकेट में ई लगा रखा है। आई होप ये वाला रीज़न क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि ये तो सेम है कि एत्र के आगे न फिर पा, जैसे कि हमने अबुआर में करा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल रखे, जैसे कि च्यूनेपा आले आले खोल, इल नेपा आले आले कोल, एल नेपा आले आले कोल। अब देखो एल हमारा क्या है, फेमिनिन है, तो इसलिए आले वर्ब के पीछे एक एक्स्ट्रा ई जो है वो प्लस आउट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट दे रखा है,
कि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक्सप्रेशंस देखे थे, नेगेटिव एक्सप्रेशंस. सो ऑल द नेगेटिव एक्सप्रेशंस लाइक न पा, न रिया मीन्स नथिंग, न जामे मीन्स नेवर, न प्ल मीन्स नो मोर, contain only auxiliary verb between them in the negation in the past tense, while the negation no person and no null par contain the auxiliary and the past participle both. तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारे नेगेटिव एक्सप्रेशन जो कि ये न पा, न रिया, न जामे, न प्ले, इनके बीच में जो ये पॉइंट लगा रखा है, यहाँ पर हमने देखा था कि यहाँ पर हमारी क्या आती है, वर्ब आती है, राइट. अब बात करते हैं इनको पासिंग कंपोजिशन में यूज़ करने की, जहाँ पर हमारे पास दो वर्ब्स होती हैं. तो इन एक दो तीन इन चारों के साथ हमारी जो ये पॉइंट है इनके बीच में, इनमें सिर्फ हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, मीन्स अवुआर या फिर हमारी एत्र वर्ब आती है. बट ये वाले हमारे नेगेटिव एक्सप्रेशन, नो पर्सन मीन्स नो बडी, नो न्यूल पार मीन्स नो वेयर, तो इनके बीच में हमारी दोनों ऑक्सिलरी वर्ब भी एंड के साथ पास्ट पार्टिसिपल दोनों आते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. Je ne suis allé nulle part मीन्स आई वेंट नोवेयर, कहीं नहीं गई मैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा न और न्यूल पार के बीच में क्या आ गई, ऑक्सिलरी भी आ गई एंड पास्ट पार्टिसिपल भी आ गया. ठीक है, वैसे ही अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ ये वाला, चलो ये तो वो है, हाँ पर्सन वाला एग्जांपल देते हैं. तो जो हमारा न पर्सन वाला एक्सप्रेशन है उसके बीच में आप लोग देख सकते हो न पर्सन यहाँ पर है एंड बीच में क्या आ गई हमारी ऑक्सिलरी एज वेल एज पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों हमारे आगे. तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि नो पर्सन और नो नुल पार के बीच में दोनों ऑक्सिलरी भी और पास्ट पार्टिसिपल दोनों के दोनों आएंगे और बाकियों के साथ सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब हमारे बीच में लगेगी. ठीक है, फिर हमारा दे रखा है पासे कॉम्पोजे अविक ल ले वैब प्रोनोमिनो. अब हमें प्रोनोमिनल वर्ब्स पता है. प्रोनोमिनल वो वाली वर्ब्स होती हैं जिनको हम स्पेसिफाई करते हैं कि वो एक्शन किसके द्वारा परफॉर्म करा गया, किसने परफॉर्म किया है. जैसे कि आई डिड माई वर्क माई सेल्फ, तो ये हमारी क्या हो गई, प्रोनोमिनल वर्ब हो गई. मैंने माई सेल्फ लगाकर उसको अपने ऊपर डिनोट कर दिया कि मैंने एक्शन करा है. ठीक है, तो प्रोनोमिनल वर्ब्स हमने ऑलरेडी कर रखे हैं वैसे. सो ऑल द प्रोनोमिनल वर्ब्स दैट आर कॉन्जुगेटेड इन द पास्ट टेक एत्र एज देयर ऑक्सिलरी वर्ब. जितनी भी प्रोनोमिनल वर्ब्स हमारी पास्ट कंपोजिशन में कंजुगेट होंगी उनकी ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा एत्र होगी, अववार नहीं होगी. ठीक है, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं म, त, स, नो, वो, स, सो दे प्रीसीड द ऑक्सिलरी वर्ब एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द प्रोनोमिनल. The reflexive verbs precede the auxiliary and the past participle of pronominal verb agrees with the gender and number of the noun. That is, an E is added to the past participle to agree with the feminine subject and S is added for a plural subject. अब ये क्या कहता है, जो हमारे ये जितने भी प्रोनोमिनल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये हमारे ऑक्सिलरी वर्ब के आगे लगते हैं. ठीक है, क्योंकि प्रोनोमिनल वर्ब्स को हम कर रहे हैं ना पास्ट कंपोजिशन में, एत्र के साथ लगते हैं. एक चीज़ तो हमने ये देखी कि प्रोनोमिनल वर्ब हमेशा एत्र के साथ होगी. दूसरी चीज़ जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो हमेशा एत्र के जो है आगे लगेगा. ठीक है, ये दो चीज़ हमने देख ली. तीसरी चीज़, जैसे कि आप लोगों को रूल पता है कि एत्र वर्ब के साथ जब भी हमारा कोई भी नाउन वर्ब कॉन्जुगेट होती है पास्ट कंपोजिशन में तो वो उसके सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर पर जो है डिपेंड करती है. तो वो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है, अगर हमारा नाउन मैस्कुलिन है तो एज इट इज़ रहेगा, मैस्कुलिन प्लूरल है तो एस ऐड हो जाएगा वर्ब के अंदर. अगर हमारा नाउन फेमिनिन है तो वर्ब के अंदर ई ऐड हो जाएगा, अगर फेमिनिन प्लूरल तो ई एस ऐड हो जाएगा. ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमारी ये है कि सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को सेटिस्फाई करना पड़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दे रखे हैं. अगर मैं कहूँ नेहा ए अम्यूजे पोंतो से वेकॉन्स, तो ये तो हमारा सिंपल हो गया, नेहा हमारी लड़की है तो हमने पीछे ई लगा दिया इसके. अगर मैं कुछ को प्रोनोमिनल में कन्वर्ट करना है, प्रोनोमिनल पास्ट कंपोजिशन में, तो मैं क्या करूँगी, हमारा नेहा के साथ, नेहा इज़ द सब्जेक्ट एल के साथ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है स. और मैंने आप लोगों को पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एत्र वर्ब के आगे लगेगा, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया. ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ भी क्लियर हो गई होगी. अब नेक्स्ट है हमारा ला नेगासियों अवेक ले वैब प्रोनोमिनो मीन्स इन नेगेशन विद द प्रोनोमिनल वर्ब्स. अब सिंपल हमने प्रोनोमिनल वर्ब्स के साथ देख लिया, अब हम देखते हैं इसकी नेगेशन कैसे होती है. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि नेगेशन एत्र वर्ब के साथ, सिंपल एत्र वर्ब के साथ हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर कि एत्र वर्ब के आगे एंड एत्र वर्ब के पीछे आगे न लगता है, फिर पीछे पा लगता है.
अब अगर हम बात करते हैं प्रोनोमिनल वर्ब्स की, सो टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेज पार्ट से कंपोजिट विद प्रोनोमिनल वर्ब्स वी पुट द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड कॉन्जुगेटेड वर्ब इन बिटवीन न एंड पा। मीन्स जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है एंड जो हमारी एत्र वर्ब होती है वो दोनों की दोनों हमारी न और पा के बीच में लगती है। ठीक है, मैं एक लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कहूँ je me suis lavé, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिया je me suis lavé। अब म और स्वी ये तो हमें ये सी ये म तो है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड ये स्वी क्या है हमारी एत्र वर्ब। तो हम क्या करेंगे, म के आगे लगेगा न एंड स्वी के बाद लगेगा पा। तो ये दोनों किससे बॉन्ड हो जाएंगी, दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से हमारी किससे बॉन्ड हो जाएगी, न और पा से बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा नेगेशन विद दी प्रोनोमिनल वर्ब्स। अब नेक्स्ट पर हमारे पास एक सकुशे वर्ब है, उसका एग्जांपल दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव, जिसको आप लोग रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ द इंटेरोगेशन। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी इंटरोगेशन होती है उसके हमारे 3 स्ट्रक्चर्स जो हैं यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा इंटोनेशन। इंटोनेशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारी जो टोन होती है उसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इल न से पा प्रोमिने, मैं इसको सिंपल कहती हूँ, मीन्स ही डिड नॉट गो या ही डिड नॉट वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक नहीं करी, इल न से पा प्रोमिने। तो ये मैंने अपनी क्या करी, थोड़ी सी टोन चेंज करी एंड इससे क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं पास्ट कॉम्पोजिट विद प्रोनोमिनल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एडिंग इस्क। इस्क हम ऐड करते हैं हमारे सेंटेंस के आगे, पूरे के पूरे सेंटेंस के आगे, एंड वो हमारा क्या बन जाता है, फिर नेगेटिव बन जाता है, सॉरी इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे कि मैं कहूँ इल से प्रोमिने, मेरा एक सेंटेंस है एंड उसके आगे देखो मैंने यहाँ पर फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में एक्चुअली दिस ब्रश इज़ नॉट वर्किंग, नहीं तो मैं मार्कअप कर देती। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, प्लीज़ लास्ट टॉपिक रहता है इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि ऐसे ही कर लेते हैं, सो दैट्स वाई प्लीज़ एडजस्ट अ लिटल। सो इल से प्रोमिने मैंने सिंपल सेंटेंस में कहा, आप लोग ये वाला इस वाले की मैं बात कर रही हूँ। तो इल से प्रोमिने मैंने कहा, इसके आगे मैंने इस्क ऐड कर दिया एंड क्योंकि यहाँ पर वॉवल था दोनों में तो इसलिए क का जो ई है वो ड्रॉप होकर अपोस्ट्रोफी लग गया। ठीक है, इस किल से प्रोमिने एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट मेथड हमारा होता है इन्वर्जन का। इन इन्वर्जन फॉर द इंटेरोगेशन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी द विद द कॉन्जुगेटेड एत्र इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, मतलब कि एत्र एंड सब्जेक्ट के अंदर तो होता ही है इन्वर्जन, बट जो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है वो सबसे आगे हमारा चला जाता है विद द एत्र वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आप लोग देख सकते हो। सो यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। लास्ट में हमारी एक्सरसाइज रहती है एंड ये वोकैबलरी आप लोग रीड कर लेना। दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। एक्सरसाइज को सॉल्व करना एंड नहीं हो पाती तो आस्क मी इन द कमेंट्स, उसके ऊपर भी अलग से वीडियो फिर हम बनाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।